اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں وہ وقت نظر آتا ہے جب انسانیت اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ 6 صدی انسانی تاریخ کا سب سے تاریک باب تھا۔ وسیع صحرا سے لے کر روم اور فارس کے عظیم محلوں تک ہر جگہ ظلم اور گناہ کا راج تھا۔ مورخین نے اس دور کو عصر جاہلیت یعنی جہالت کا زمانہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ روم میں اس صورتحال کے بھیانک پن کو یوں بیان فرمایا، فساد زمین اور سمندر میں پھیل گیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ دوسرے الفاظ میں انسانوں نے اپنی ہی ہاتھوں سے دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا تھا۔ اس وقت کے عرب معاشرے کو دیکھ کر انسان کانپ اٹھے۔ انسان کی زندگی کی کوئی قدر نہیں تھی اور عورتوں کی حالت ناقابل یقین حد تک نیچی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کو اتنا شرمناک سمجھا جاتا تھا کہ بہت سے سنگدل باپ اپنی محبوب بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ زمین کے نیچے سے ان معصوم بچوں کی چیخیں سنائی دیتی تھیں جو کہ ریت کی ہوا بھاری تھی، لیکن اس کا اثر اس معاشرے کے سخت دلوں پر ایک خراش تک نہیں چھوڑا۔ موسیقی عورتوں کو صرف خوشی کے سامان سمجھا جاتا تھا۔ جیسے بچے اپنے والد کے مرنے کے بعد اونٹ اور مویشی وراثت میں پاتے تھے، ویسے ہی وہ اپنی سوتیلی ماؤں کو بھی وراثت میں حاصل کرتے تھے۔ یہ انسانیت کا زوال تھا۔ مذہبی عقیدے کے لحاظ سے وہ موسیقی بالکل گمراہ تھے۔ مقدس خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، وہاں 360 بت نصب تھے۔ اندر باہر وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے، لیکن بہت سے بغیر کپڑوں کے۔ توہمات نے انہیں اس قدر جکڑ رکھا تھا کہ وہ سفر اقام کی قسمت کا فیصلہ پرندوں کی اڑان، چھوٹے جھگڑوں اور گھڑ دوڑ کو دیکھ کر کرتے تھے۔ موسیقی خونی جنگیں سالوں تک بلکہ نسل در نسل چلتی رہیں۔ اوس اور کزرج قبیلوں کی جنگیں، موسیقی یا باسوس کی جنگ اس خوفناک حقیقت کی گواہ ہے۔ شراب، جوا اور زنا موسیقی ان کے روزمرہ کے ساتھی تھے۔ لوٹ مار اور طاقت ہی ان کا غین یا رسمی قانون تھا۔ کمزوروں پر مظالم روز کا معمول تھے۔ یتیموں اور بیوہ خواتین کی آہوں کو سننے والا کوئی نہ تھا۔ انصاف اور برابری جیسے الفاظ ان کی لغت سے مٹ چکے تھے۔ صرف عرب ہی نہیں بلکہ اس وقت کے بڑے طاقتور ممالک، رومی اور فارسی سلطنتوں میں بھی عام لوگ غیر انسانی اذیتوں کا سامنا کرتے تھے۔ حکمران خود کو خدا کے مقام پر بٹھا کر اپنے رعایا پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک گہری چیخ دنیا بھر میں گونجی۔ ہر ذرے نے ایسا محسوس کیا جیسے چیخ رہا ہو، ہمیں ایک روشنی کا مینار چاہیے جو اس تاریکی کو چیر دے۔ ہمیں ایک نجات دہندہ چاہیے جو ان گمراہ لوگوں کو سچ کا راستہ دکھائے اور انسانی وقار بحال کرے۔ ایسے شاندار حالات میں مکہ کی خشک پہاڑیوں اور گرم ریتوں میں انسانیت کے نجات دہندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں آئے جہاں سچ بولنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، جھوٹ اور فریب کو بزرگی کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ نبی نے نبوت حاصل کرنے سے پہلے 40 سال اس گندے معاشرے میں گزارے، لیکن وہ پھر بھی کمبل کے پھول کی طرح پاک و صاف رہے۔ مکہ کے سب سے کٹھن دشمن بھی انہیں امین یعنی دیانتدار اور قابل اعتماد کہتے تھے، ان کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے۔ مگر جب جبرائیل علیہ السلام نے غار ہرا میں اللہ کا پیغام پہنچایا اور نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہی مانوس معاشرہ ان کے لیے اجنبی بن گیا۔ چچا جو کبھی ان سے محبت کرتے تھے، ابو لہب، ان کے خلاف ہو گئے اور ان کی مخالفت کرنے لگے۔ خون ایک نابرابر جنگ شروع ہو گئی۔ ایک طرف تنہائی اور سچائی تھی اور دوسری طرف وہ تعصب اور طاقت تھی جو ہزاروں سال سے جڑ پکڑے ہوئے تھی۔ موسیقی یہ تنازع صرف لفظوں کی جنگ نہیں تھی۔ اس راستے پر چلنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقابل بیان جسمانی اور ذہنی اذیتیں سہنی پڑیں۔ نبوت کی عظیم ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہی لوگ مکہ کے جنہوں نے کبھی اسے سمجھو کہ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھا، لیکن سچائی کی دعوت دینے کے جرم میں وہ ان کا جان دشمن بن گیا۔ پہلے انہوں نے اسے بہکانے کی کوشش کی، دولت اور طاقت کی پیشکش کی، لیکن جب وہ سچائی کے راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوا تو انہوں نے ظالمانہ جسمانی تشدد شروع کر دیا۔ مکہ کے کافروں کے رہنما، خاص طور پر ابو جہل، ابو لہب اور اکبر بن ابو جیسے ظالم مرد،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ते रहे। एक दिल दहला देने वाला वाकया बयान किया गया है। मौसीकी साहिब बिक्री। एक दिन नबी करीम कबा के सहन में नमाज पढ़ रहे थे। जब वो सजदे के लिए जमीन पर गए तो करीब बैठा अबू जहल अपने साथियों से बोला, क्या तुम में से कोई है जो किसी कबीले के ज़बह किए हुए ऊंट के सड़े हुए अंदरून को लेकर मोहम्मद की पीठ पर रख दे? बदकिस्मती से ग्रुप का सबसे बदतरीन शख्स इस घिनौने काम को करने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि नबी मौसीकी वसामुल्लाह के सामने सजदे में झुका हुआ था। वो बदबूदार और सड़ी हुई भारी आंतें इसकी मुकद्दस पीठ पे रे डाल दी गईं। इस भारी वजन और नाकाबिल बर्दाश्त बदबू के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दम घुटने के करीब थे। ये मंजर देखकर काफिरों ने हंस हंस कर लूटपोट हो गए, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूसी में डूबे हुए थे। वो अपना सर उठा नहीं सकते थे। ये खबर सुनकर उनकी छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा दौड़ती हुई आई। उसने अपने वालिद की पीठ से मील कचेल हटाया और इन सोहे भरी आंखों से काफिरों की तरफ देखा और उनके खिलाफ दुआ की। थोड़ी देर के लिए सोचो, जो दनियों के लिए रहमत है, इसे अपनी ही सरजमीन पर इतने बुरा भला सुनना पड़ा। मौसीकी अजियतें यहां खत्म नहीं हुई। एक बार फिर वो गुनाहगार इक्कीबी मोयदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाया और एक वहशियाना कत्ल करने की कोशिश की। उसने चादर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिले के गिर्द लपेट दी और जोर से खींचने लगा ताकि उसे गला दबाकर मार डाले। इसी लम्हे हजरत अबू बकर अल्लाह ने जो दौड़ते हुए आए, इकबा को धक्का देकर दूर किया और वो तारीखी बात काफ की जो कुरान मजीद की सूरत में भी एक मोमिन की जबान से बयान हुई है। क्या तुम इस शख्स को मारना चाहते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है और उसने तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलीलें तुम्हारे सामने लेकर आया है? मक्का में ये 13 लंबे साल आजमाइश और सब्र की आग थे। कांटे इसके रास्ते में बिछाए गए थे। नमाज पढ़ते हुए इसे तंग किया गया, इसे समाजी तौर पर नजरअंदाज किया गया और वादी में कैद किया गया। शीबालैब को 3 साल तक क्या कुछ न सहना पड़ा। वो दिन गुजार देता रहा बेवके और प्यास की मार से दरख्तों के पत्ते खाकर, फिर भी हक फैलाने से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। ताइफ के मैदान में पत्थर बरसाए गए, इसके जिस्म से खून बहा, यहां तक के जूते इसके पांव से चिपक गए। फिर भी इसने इनको गाली नहीं दी, बल्कि उनकी हिदायत के लिए दुआ की। जब इतनी जिस्मानी अजियत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले को तोड़ ना सकी, तो मक्का के काफिरों का सब्र जवाब दे गया। लेकिन साजिश राख नहीं पाए। जब वो मदीना हिजरत कर गए, इस्लाम के दुश्मनों ने अपनी हिकमत अमल छोटिए बदल ली। तलवारों और पत्थरों की बजाय वो अब एक नामरी और खौफनाक हथियार का सहारा लेने लगे, यानी जादू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी में मदीना में इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसने साबित किया कि छुपा हुआ दुश्मन खिले दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हिजरत के बाद जब इस्लाम की बुनियाद मजबूत होने लगी, तो मदीना के यहूदियों और मुनाफिकों ने समझ लिया कि यह मुमकिन नहीं। मौसीकी इस नबी को खिले मुकाबले में शिकस्त देना नामुमकिन था। उन्होंने बदर और अहद की मैदान जंग में मुसलमानों की रूहानी ताकत देखी थी। इसलिए मौसीकी उन्होंने एक गंदी और तारीक राह अपनाई। उन्होंने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया जो नजर तो नहीं आता लेकिन इंसान को आहिस्ता आहिस्ता तबाह कर देता है, यानी सिहरा काला जादू। इस वाक़ये की तफसीलात मुतादिद मुस्तनद अहादीस में, जैसे सही बुखारी और मुस्लिम में, मलती हैं। मदीना के बनु ज़ारा अलैहिस्सलाम कबीले का एक गुनाहगार यहूदी जादूगर था जिसका नाम लबीद बिन इल्लाइस्म था। यहूदी सरदारों ने उसे मुलाजमत दी। अलिफ एक बड़ी रकम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ताकतवर जादू करने के लिए। ये बदबख्त जादूगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया हुआ एक कंघी और कुछ मुकद्दस बाल जमा करने में कामयाब हो गया जो बालों में से गिर चुके थे। फिर इसने वो बाल और कंघी खजूर के खुश्क तने में डाले। इसमें 11 गांठें बंद हैं और जादुई वर्द पढ़ते हुए इसे मदीना के एक वीरान कुन में जीरवान की तह में एक भारी पत्थर के नीचे दफन कर दिया। इसके असर में जादू, जो कि दुनिया के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, एक अजीब जिस्मानी और ज़हनी तकलीफ से गुजरने लगे।
मोमिनीन की मां आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज बरोज कमजोर होते जा रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस होता कि वो कोई काम कर चुके हैं, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता था। वो समझते कि वो अपने खानदान के साथ वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन असल में वो इबादत में मसरूफ होते थे। ताहम हमें एक बात बहुत वाज़े तौर पर याद रखनी चाहिए। उलमा का इत्तेफाक है कि इस जादू का असर सिर्फ इसके दुनियावी जिस्म और इंसानी अमाल पर कोई असर नहीं पड़ा। वही वसूल करने पर बिल्कुल भी फर्क नहीं आया। वही नबूवत के फराइज अंजाम देने दीन की तबलीग के लिए थी, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपनी वही का मुहाफिज है। दिन ब दिन इस तकलीफ को सहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब हबीब नबी को इस साजिश के बारे में आगाह किया। एक रात उन्हें ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते उनके पास आए हैं। एक उनके सर के करीब बैठा और दूसरा उनके पीर के पास। उनकी गुफ्तगू के जरिए अल्लाह ताला ने सब कुछ जाहिर किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब और गरीब बातें सुनाई दे। एक फरिश्ता ने पूछा, इस बंदे को क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, ये जादू में मुब्तला हो गया है। फिर पूछा गया कि जादू किसने किया? जवाब मिला, लबीद बिन अस्म ने। फिर पूछा गया कि किस चीज से और कहां? जवाब आया, एक कंघी और बालों से जो जरवन के कुएं के नीचे छुपे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जागे तो अपने साथियों को लेकर इस कुएं पर गए। जादू के असर में कुएं का पानी सुर्ख हो गया था, जैसे पानी में हैना रंगा गया हो, और बदबूदार था, और आसपास के खजूर के दरख्त शैतानी सर जैसे खौफनाक लग रहे थे। सहाबा ने कुएं का पानी निकाला और वो लनती गठरी निकाली। इसी हसास मौके पर अल्लाह ताला ने दो अजीम सूरे कुरान मजीद की नाजिल फरमाए, सूरत अल फलक और सूरत अल नास। ग्रालसाम की हिदायत पर नबी ने एक आयत पढ़नी शुरू की और एक गांठ खिल गई। हर गांठ खिलने पर वो महसूस करते गए कि जैसे इसके जिस्म से कोई भारी बोझ उठा दिया गया हो। जैसे ही 11 आयत खत्म हुई, वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया, जैसे पिंजरे से आजाद हुआ परिंदा। यहां सबसे अहम सबक यह है कि जब वो ठीक हो गया तो साथियों ने जादूगर लीद को मारने की इजाजत मांगी, लेकिन रहमत के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे शिफा दी है। मैं लोगों में कोई नया फसाद, इंतशार या बुराई नहीं फैलाना चाहता। उन्होंने इस जादूगर को मुआफ कर दिया, हालांकि वो इसे काबू में ले चुके थे। इंतकाम नहीं लिया। लेकिन मदीना के यहूद की साजिशें यहां खत्म नहीं हुई। जादू की नाकामी के बाद उन्होंने एक और भी खौफनाक मंसूबा बनाया, जो सीधा जहर देकर उसे कत्ल करने की कोशिश थी। किबार का वो वाक़या तारीख के सफ़हात में एक अलमनाक बाब के तौर पर रह गया। मदीना में यहूदी साजिश जादू के नाकाम होने के बाद जब हिजरत के 7वें साल में किबार की फतह मुकम्मल हुई, मुसलमानों ने आर्जी सुकून की सांस ली। जंग के तबल बंद हो चुके थे और फतह की खुशी थी हर जगह। इसी वक्त एक यहूदी औरत जिसका नाम ज़ुब बिन्त अल हारिस था, एक भयानक साजिश की जाल बिछा रही थी। इसे मालूम था कि इस नबी को तलवार से शिकस्त देना नामुमकिन है, इसलिए इसने धोखा देने का रास्ता इख्तियार किया। ज़ुब ने मंसूबा बनाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देकर कत्ल कर दे, और ये दावत के बहाने किया जाएगा। ये इस्लाम की तारीख के सबसे खतरनाक लम्हात में से एक था, जब दुश्मनों ने बराह रास्त उनकी जान लेने की कोशिश की। ये औरत बहुत चालाकी से ये मालूम कर गई कि बिक्री के किस हिस्से को अल्लाह के रसूल को खिलाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना बहुत पसंद था। उन्हें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे वाले पांव या कंधे का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुनकर इस औरत ने एक बिक्री ज़बह की, इसे भुना और कंधे के गोश्त में खास जहर मिला दिया, जो बहुत तेज असर करने वाला था। फिर बड़ी ज़ाहिरी आजिज़ी के साथ वो जहरीला खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे के तौर पर पेश किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक नीति से इसे कबूल किया। वसाम ने दावत कबूल काफ छोटिए और अपने साथियों के साथ खाने के लिए बैठ गया। खाने की छठी बिछ गई थी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरीले कंधे का एक टुकड़ा इसके मुंह में डाला तो एक मुजिजाना वाकया पेश आया। उसने गोश्त चबाया मगर निगला नहीं। एक लम्हे में अल्लाह ताला ने उसे बताया कि इस खाने में मौत छपी हुई है। सही हदीस की रवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक साथियों को रोककर फरमाया, तुम में से कोई भी उसे न खाए।
खाने से अपने हाथ हटा लो क्योंकि ये बकरे का टांग मुझे बता रही है कि इसमें जहर है। उसने फौरन मुंह में मौजूद नवाला थूक दिया। लेकिन तब तक उनके एक अजीज साथी बुशनारी अनो, जो नबी के साथ खा रहे थे, ने गोश्त का एक टुकड़ा निगल लिया था। जहर इतना शदीद था कि कुछ ही देर बाद बशीर इब्न बारी शहादत पा गए और उनका जिस्म जहर की वजह से काला पड़ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी औरत को तलब किया और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ये करना? जवाब में वो औरत बगैर किसी पछतावे के बोली, मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी। मैंने सोचा अगर तुम सिर्फ बादशाह हो या एक आम इंसान तो हम इस जहर से तुमसे छुटकारा पालेंगे, और अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो अल्लाह तुम्हें खबरदार कर देगा और यह जहर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। क्या अजीब मंतिक है। मौत के सामने भी नबी की वो अजमत देखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस औरत को मुआफ कर दिया और अपने लिए कोई बदला नहीं लिया। बुशबुरी अल्लाह अनो जहर के बाइस फौत हो गया था। बाद में इस्लामी शरीयत के कानून के मुताबिक वो औरत क़िसास के तौर पर फांसी दी गई। हालांकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन ने इस दिन अपने महबूब हजरत हब को मुजिज़ाना तौर पर बचा लिया। जहर का एक निशान नबी के पाक जिस्म में बाकी रह गया। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि शदीद जहर के असरात जिस्म से मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। नबी कभी कभार इस जहर की तकलीफ महसूस करते थे। इसके बाद वाक़ये के बाद वो 3-4 साल और जिंदा रहा, लेकिन इसे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक इस एक जहर के जर्रे की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी। और यही वजह है कि अलिफ सीन की मौत के वक्त जो दुख और अलमिया हुआ इसे आम मौत नहीं कहा जाता। कैसे कबीर के जहर का दर्द इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में वापस आया और इसे शहादत का मर्तबा क्यों दिया गया, ये दिल को छू लेने वाली कहानी है। बहुत से लोगों के जहन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूल अकरम फितरी मौत मेरे या उन्हें शहीद कहा जाएगा? इस सवाल का जवाब इस जहरीली साजिश के नताइज में छुपा है जो करबला में हुई। अगरचे अल्लाह ताला ने अपने हबीब को करबला के दिन फौरी मौत से बचा लिया, मगर इस जहर का असर मुकम्मल तौर पर खत्म ना हुआ। ये अल्लाह का एक शानदार फैसला था जो 3 या 4 साल बाद जाहिर हुआ। जब विदा का वक्त करीब आया तो वो मदफून जहर दोबारा जाग उठा। महीना सिफर साल 11 हिजरी में दुनिया के नबी अपनी मौत के बिस्तर पर लेटे थे। उनका जिस्म तेज बुखार से जल रहा था और सर में नाकाबिल बर्दाश्त दर्द था। साहिब बुखारी में एक दिल दहला देने वाला मंजर बयान किया गया है। मौत के बिस्तर पर लेटे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी महबूबा बीवी अल मोमिनीन अपने करीब बुलाया। उन्होंने कहा, ए आयशा, मुझे इस जहर आलूद खाने का दर्द महसूस हो रहा है जो मैंने यौम करबला को खाया था। इस जहर की शिद्दत की वजह से आज मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे गर्दन की रग या दिल की इर्टा काट दी जा रही है। यह हदीस बहुत वाज़े तौर पर साबित करती है कि उनके इंतकाल की एक बड़ी वजह जहर था। मौसीकी मरूफ सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते थे कि मैं 9 बार कसम खा सकता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए, यानी वो शहादत पा गए, और मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि वो कुदरती मौत मेरे। मरूफ आलम अल्लामा हाज जिलानी अली और दीगर उलमा भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ने अपने महबूब दोस्त को दुनिया में सबसे बड़ी इज्जत नबूवत का मर्तबा दिया और आखिरत में इसे शहादत की बुलंद तरीन मकाम अता करना चाहा। इसीलिए जिंदगी के आखिरी लम्हात में इस जहर के दर्द को दोबारा महसूस करवाते हुए अल्लाह ने इसे शहीद की मौत का मर्तबा बख्शा ताकि क़यामत के दिन वो नबियों के सरदार के साथ शुहदा का सरदार भी बने। जरा सोचें, वो शख्स जिसने ताइफ के मैदान में खून बहाया, जिसका मुकद्दस दांत टूटा। अहद के मैदान में उसने भूख सहने के लिए पत्थर अपने पेट पर बांध लिए, मौसीकी और अपने ही वतन से निकाल दिया गया। अपनी आखिरी सांस तक जहर के दर्द को बर्दाश्त करना पड़ा। इतनी तकलीफों के बावजूद इसके चेहरे पर अल्लाह की रजा की मुस्कुराहट थी। आखिरी लम्हे में मौसीकी उसने हाथ उठाया, अल्लाह की तरफ इशारा किया और कहा, अल्लाह, यानी ते अल्लाह, मैं अब अपने सबसे आला साथी से मिलना चाहता हूं। फौरन इसके बाद इसकी पाक रूह रुखसत हो गई। हुजूर नबी की मौजूदगी में मदीना के आसमान और फिजा रोने की आवाजों से बोझल हो गई। सहाबा को ऐसा लगा जैसे पूरा मदीना सिया घने साए में डूब गया हो।
आज अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक खुली किताब है। जो जादू इस पर किया गया, जहर जो दिया गया और जो अजियतें अल्फाटे, ये सब उम्मत के लिए एक सबक है। उन्होंने हमें दिखाया कि अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए आजमाइशों का सामना करना पड़ता है और उन आजमाइशों से निकलने का वाहिद हथियार सब्र और अल्लाह पर पुख्ता ईमान है। उनके शहादत हमें याद दिलत छोटी है कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसका आखिर मकाम जन्नत है, जन्नत अल फिरदौस। ये अजीम हीरो हमें सिखाते हैं कि दुश्मनों को कैसे मुआफ किया जाए और दर्द के बीच भी रब का शुक्र कैसे अदा किया जाए। आज भी 1500 साल बाद उनकी कुर्बानी की कहानी मोमिन के दिल को खून के आंसू रुलाती है, लेकिन साथ ही ये ईमान का दिया भी रोशन करती है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस तवील गुफ्तगू के बाद एक सवाल फितरी है कि हमारे दिलों में अल्फाबेरी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दुख क्यों सहना पड़ा? मौसीकी वही जो अल्लाह का सबसे महबूब मखलूक था, जिसकी एक इशारे पर चांद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मौसीकी जिसकी दुआ से सहरा में बारिश बरस गई। वो जादू के दर्द में क्यों कर तकलीफ में मुब्तला रहा? वो सारी जिंदगी जहर के जलने का दर्द क्यों सहता रहा? इसका जवाब इन अजीम असबाक में छुपा है जो हमारे लिए छोड़े गए हैं। अल्लाह ताला चाहता था कि इसके हबीब की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए एक जिंदा मिसाली नमूना बने। क़यामत के दिन तक आने वाले मखलूक के बारे में इन वाक़यात से हमें पहला सबक सब्र अला मुत्तनाही बर्दाश्त मिलता है। जब हमारी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किल आती है, जैसे छोटी बीमारी या दुश्मन की तरफ से कोई परेशानी, तो हम मायूस हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह ने हमें भला दिया है। लेकिन देखिए दुनिया के नबी को, जो बेगुनाह होने के बावजूद नफरत अंगेज हमलों जैसे जादू का शिकार हुए और जहर देने जैसी मोहलिक साजिशों का सामना किया, मगर उन्होंने कभी भी अपने रब के फैसले पर शिकायत नहीं की। उन्होंने हमें सिखाया कि चाहे कुछ भी हो, खतर कितना बड़ा है, मौसीकी अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत होना चाहिए। दूसरा सबक मुआफी है। मदीना का वो जादूगर लबीद बिन इल्लाइस्म और कबीर की वो जहरीली औरत दोनों संगीन मुजरिम थे। दुनिया का कोई भी बादशाह या हुक्मरान उन्हें अवामी तौर पर फांसी देता, लेकिन रहमत लिल आलमीन, जो दन्नियों के लिए रहमत है, ने जाती गुस्से में किसी को सजा नहीं दी। उसने अपने ही कातिल की कोशिश करने वाले को भी मुआफ करने का बड़ा दिल दिखाया। ये मुआफी कमजोरी नहीं थी, बल्कि यही इस्लाम की फतह की कुंजी थी। जब लोग इस अजमत को देखते तो पत्थर की तरह सख्त दिल मोम की तरह पिघल जाते और गरोहों की सूरत में इस्लाम के साए तले आ जाते। आज हम जो खुद को इसकी उम्मता पैरोकार कहते हैं, हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। थोड़ी सी खुदगर्जी की खातिर हम अपने भाइयों से ताल्लुकात तोड़ लेते हैं। हम बदले की आग में जल उठते हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नफरत को मोहब्बत से शिकस्त देना सिखाया। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि सच के रास्ते पर चलते हुए रुकावटें आएंगी, मगर उन रुकावटों को ईमान की ताकत से गालिब आएं, हसद से नहीं। आखिर में आइए एक अहद करें। हम सिर्फ जबान से नबी का नाम नहीं लेंगे, बल्कि उनकी कुर्बानी की तारीख, सब्र और मुआफी के उसूलों को अपनी जिंदगियों में अपनाएंगे। उन्होंने किब्र में इस जहर का दर्द सहकर यह दिखाया कि हम तौहीद के ठंडे साए में रह सकें। उनका कर्ज अदा करना नामुमकिन है, लेकिन हम उनसे मोहब्बत का इजहार उनकी संत को मजबूती से थाम कर सकते हैं। अल्लाह ताला रब अल आलमीन से दुआ है कि दुनिया वालों हमें वो सलाहियत दे कि हम नबी के दिखाए हुए रास्ते पर चल सकें और अपनी जिंदगी उनके उसूलों को दिल में बसाकर गुजारें। अजीज नाजरीन, अगर इस्लामी तारीख के ये अनजान और दिल को छू जाने वाले वाक़यात आपके दिल को छू गए हैं मौसीकी, तो मेरी अब से दरख्वास्त है कि उन हकाइक को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें। इस गुमराह कुन सकाफत और झूठी मालूमात के हुजूम में सच्ची तारीख फैलाना भी एक बहुत बड़ा दीनी फरीज़ा है। अगर आपको हमारी ये मामूली कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी फैमिली का हिस्सा बनें और हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह मौसीकी, हम आपसे बहुत जल्द एक नए तालीमी वीडियो में मुलाकात करेंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया।